So today we are doing a quick revision of the chapter Coal and Petroleum of 8th Standard NCERT Science Textbook. Okay, so there is an all paper session season coming in front of us. So little short notes. This all are your notes and full explanation with all the things. Okay, and at the end a little test to check how much prepared you are for your papers. And really very clear, you will get all your points clear, all the doubts clear, and in very short. Okay, let's begin. Coal and Petroleum quick revision notes also. So first point is natural resource. So what is natural resource? Just learn here first. Natural resource, material from nature used by human. What is natural resource? Everything we take from nature, like whatever we take from nature and used without much modification is called as natural resource. Now what is resource? So resource is what? So resource is anything that satisfy our need is called as resource. Anything that satisfy. That is very important here because if I am hungry and if I eat raw, so my satisfaction level will be really down. So but if I am hungry and I'll eat food which I like, which is eatable, so that satisfy my needs, so that is a resource. But if there is a plant which I cannot eat and my satisfaction level is not covered, but if a goat hungry, so she can eat a plant and her satisfaction level will be good. Means a resource can be changed also by person to person. Okay, types: inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible, in the name inexhaustible we learn that it is inexhaustible, ये थकता नहीं है. एंड exhaustible हम ये बता सकते हैं कि ये थकता है. ओके, अभी थकता है मतलब ये थकता नहीं है, मतलब ये अनलिमिटेड है, ये सब कुछ कर सकता है. दिस इज अनलिमिटेड सप्लाई. ओके, अनलिमिटेड सप्लाई. अनएग्जॉस्टिबल मतलब ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, हमें जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, ये खराब नहीं होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन के एक्सेसिव यूज़ की वजह से. वही एग्जॉस्टिबल, ये थक जाता है तो ये कम मात्रा में है, लिमिटेड सप्लाई है इसका, हम ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है. एग्जॉस्टिबल के एग्जांपल है एयर एंड सनलाइट विच आर अनलिमिटेड इन एटमॉस्फेयर अवेलेबल नाउ. एंड exhaustible जो जल्दी थकता है, एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम मिनरल्स विच आर लिमिटेड इन द environment on current situation. Now let us move to the topic fossil fuels. Okay, so don't be confused anymore, just focus on the topic fossil fuels. Definition: fuels formed from dead plants and animals buried from millions of years under heat and pressure is called fossil fuels. So what is fossil fuels? These are fossil fuels means coal we cannot buy from a shop because shopkeeper also take it from somewhere else. So this is a story of like all that. This is a story. What happens? We have to go in past. So before 300 million years ago, when there was a dense forest, there was no living organism available apart from some animals and dinosaurs. So at that time, some natural disaster came up in the forest, in the dense forest, on the lands. Like we can take an example of flood. When the flood came up, the soil level go upward. एक के ऊपर the layer becomes larger and larger, and the layer which was at the least means सबसे नीचे जो layer थी, at that layer due to high pressure and high temperature, the like dead plants and animals becomes into dead plants and animals buried, and that becomes in the presence of high temperature and pressure a coal. That becomes a coal. That's the little bit story you should take in your mind as a SIM card. Okay, now example is coal, petroleum and natural gas. Just I tell you this, but the extra was and mineral. Okay, they are non-renewable, takes millions of years to form. अभी भाई अगर ये नॉन रिन्यूएबल है मतलब ये थक जाता है, और जो थक जाता है मतलब जो थक जाता है वो कौन होता है? वो होता है एग्जॉस्टिबल, जो थक जाता है. एग्जॉस्टिबल, थकने की क्षमता रखने वाला. नॉन रिन्यूएबल मतलब एग्जॉस्टिबल, और रिन्यूएबल मतलब इनएग्जॉस्टिबल. ओके, और भाई ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि ये टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म. अगर ये इतने मिलियंस ऑफ ईयर ले रहा है फॉर्म करने के लिए, और हम अगर इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेट्रोल के लिए वो, कुकिंग के लिए वो, इंडस्ट्रीज़ में वो, अगर हम कोल को ही सब जगह पे यूज़ करेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेने वाली कोल अगर इतने कम टाइम में यूज़ हो रही है तो मतलब वो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो चुका है, क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा है और उसका बनना बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है. एक इंसान अगर ज़िंदगी में एक बार कोल को देख ले बनता हुआ, तो उसके बाद उसकी 10 जनरेशन के सामने ही वो कोई देख सकता है. Let us move to what is coal. Coal formation कैसे हुई? Dead vegetation buried under soil. वो soil के अंदर ही रह के due to heat and pressure for millions of years, coal formed. And this process called carbonization. What? Let's understand what I said just now. What? Okay, dead vegetation. अभी what is dead vegetation? So the dead vegetation phrase means dead vegetation refers to plants that have died but remain in the environment. वो मर चुके हैं लेकिन उनके कुछ अवशेष, कुछ तो भी उनका इस एनवायरनमेंट में अभी तक है. वो डेड वेजिटेशन उसके नीचे दब गया, लेयर्स के लेयर्स आती रही, वो नीचे चलता गया नीचे, बहुत नीचे चला गया वो, और जो सबसे नीचे की जो पार्ट थी ना, वो
ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, उस नीचे की सबसे नीचे की पार्ट में बहुत ज़्यादा हीट आ गया, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे लेयर्स थे। देखो अभी एक एग्जांपल देती हूँ, ठंडी में आप जितना ज़्यादा कंबल अपने ऊपर ओढ़ोगे 1 2 3 4, उतना ही ज़्यादा आपको अंदर गर्म फील होगा। तो वही हुआ, उस सॉइल की जो सबसे नीचे थी, उस सॉइल ने अपने ऊपर इतने सारे कंबल ऑफ सॉइल डाल दिए कि उसको इतनी गर्माहट हुई, मतलब ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और जब आप बहुत आप नॉट अ सॉइल, जब आप बहुत सारे कंबल लेते हो आपको थोड़ा सा दबा दबा सा फील होता है, ऐसा घुटन सी होती है। तो दैट्स द की, जब सॉइल के ऊपर बहुत सारी सॉइल की लेवल आती है, तब उसको अंदर जो सबसे नीचे रहता है उसको अंदर गर्माहट फील होती है, और उसके ऊपर इतने सारे सॉइल के लेयर्स आने की वजह से उसको घुटन सी यानी कि प्रेशर फील होता है। तो यही हो गया हमारा ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू हाई प्रेशर। ओके, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू हाई प्रेशर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। और ये सिर्फ 1 2 दिन की बात नहीं है, हम तो भी एक ही रात को सहते हैं सिर्फ 12 घंटे। ये तो मिलियंस ऑफ ईयर होने की वजह से, उस गर्माहट और प्रेशर की वजह से वो डेड वेजिटेशन एक कोल में तैयार हो गए। डेड वेजिटेशन बिकम्स अ कोल। That was the main story of the coal. Isn't that easy? Just my voice is fast, and like if you not understand anything, I'll make a separate video. Okay, I hope you have understand till this. Okay, now types of coal. There are not only the coal, there are also types of coal. So in that, first the peat. Peat means lowest carbon, high moisture. Okay, then lignite, brown coal, more carbon than peat. Okay, bituminous, soft coal, good fuel. Then anthracite, hard coal, highest carbon. Now अभी इन सब के यूजेस पता कर लेते हैं। सबसे पहले, I know this topic was a little confusing, that what's that? So there's a types of coal. Now we just learned that how the coal happens, heat, pressure, temperature, we all discuss. But there is not only one type of coal we derive from the soil. There are several types of, like 4 types of they are mentioned in the textbook. It's like types of coal. There is first peat. ये peat जो होती है वो lowest carbon होती है, और इसमें moisture की जो होती है, moisture जो होता है वो ज़्यादा होता है। फिर lignite आता है जो brown कलर का होता है, brown coal, और उसमें ज़्यादा कार्बन होता है peat से। then आता है bituminous, ये होता है एकदम soft coal और एकदम अच्छा फ्यूल होता है। उसके बाद आता है anthracite एकदम कड़क होता है और इसमें हाईएस्ट कार्बन होते हैं। अब इसको लर्न कैसे करें, ये भी तो आया होगा, आना ही चाहिए। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो तो कैसे लर्न करेंगे, ये तो क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, पीट लोवेस्ट कार्बन हाई मॉइस्चर। पीट में ऐसा बोलते रहो, पीट लोवेस्ट कार्बन हाई मॉइस्चर। पीट में क्या होता है, लोवेस्ट कार्बन होता है और हाई मॉइस्चर होता है। पीट PEAT, लोवेस्ट कार्बन हाई मॉइस्चर। ओके, देन लिग्नाइट, ब्राउन कोल मोर कार्बन देन पीट। जो ब्राउन कोल होता है और कार्बन ज़्यादा होता है पीट से 1। ओके, ब्राउन कोल, पीट। अभी अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज पीट, व्हाट्स इन द पीट, हाउ इज द पीट, डिस्क्राइब द पीट, यू कैन से लाइक लोवेस्ट कार्बन हाई मॉइस्चर। इसमें होता है कम कार्बन और ज़्यादा होता है मॉइस्चर। देन व्हाट इज लिग्नाइट, द ब्राउन कोल, ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें पीट से ज़्यादा कार्बन होता है। देन बिटुमिनियस क्या होता है, ये थोड़ा सा मुलायम नरम सा होता है और इसमें फ्यूल ज़्यादा अच्छा देता है। देन एंथ्रासाइट, ये थोड़ा कड़क रहता है और बहुत हाईएस्ट कार्बन होता है। ठीक है, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टैंड टिल दिस। ओके, देन अगेन बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल, मतलब कोल से हमें और क्या क्या मिलता है। तो भाई बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल क्या है, तो उसमें सबसे पहले आता है कोक। क्या आता है, कोक। भाई ये लर्न करना इतना ज़्यादा इजी है। कोक इट्स लाइक कोका कोला, कूल किस, जोक से पाक, कोक। ओके, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन यूज इन स्टील इंडस्ट्री। ये पूरा प्योर कार्बन होता है, एकदम प्योर कार्बन, और इसका यूज़ हम स्टील इंडस्ट्री में करते हैं। फिर कोल टार, जो ब्लैक थिक लिक्विड होता है, एकदम ऐसे गाढ़ा घट्टा ब्लैक कलर का रहता है, मेक्स डाइज एंड ड्रग्स परफ्यूम्स। कोल टार, आप ऐसे समझ लो, कोल टार मुझे अपनी बॉडी पे लगाना बहुत पसंद है। अभी कोल टार बॉडी पे क्यों लगाएंगे, फॉर द फ्रेग्रेंस। बट कोल टार की फ्रेग्रेंस हमें कैसे पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि कोल टार से परफ्यूम बनता है। कुछ इसी तरह की स्टोरी बना के हमें सब चीज़ें को अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कोल टार कैसे रहता है, कोल टार अ ब्लैक थिक सब्सटेंस, आपको लग रहा होगा मैं देख के बोल रही हूँ, नहीं मम्मी कसम, मैं बिना देख के बोलूँगी। ओके, कोल टार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड सब्सटेंस विच मेक्स डाइज। अभी डाइज क्या है ये समझ लो। डाइज मतलब जो टाई डाई आजकल नहीं होती है कि फैशन, लाइक ऑन दैट वाइट टी शर्ट्स दे मेक टाई डाइज एंड ऑल, दैट व्हाट द टाइज दे मीन टू। एंड ड्रग्स एंड परफ्यूम्स। ओके, ड्रग्स परफ्यूम्स कोल टार से ही बनते हैं हमारे ड्रग्स, कोल टार से ही बनते हैं हमारे डाइज, एंड कोल टार ही हमें फ्रेग्रेंस देता है विच इंक्लूड्स परफ्यूम्स। ओके, कोक क्या करता है, कोक करता है ऑलमोस्ट, कोक के पास है ऑलमोस्ट प्योर कार्बन यूज इन स्टील इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट प्योर कार्बन and used in steel industry, almost pure carbon and used in steel industry। कौन सिर्फ लर्निंग करके बैठोगे, फिर आएगा what, almost pure carbon, what, guess what is this, almost pure carbon used in steel industry। फिर आपको याद नहीं आएगा कि क्या है, कोल टार है, कोल गैस है कि कोक है, तो इसलिए सब लर्न करो, रट्टा नहीं मारना है। ओके, कोक ऑलमोस्ट प्योर कार्बन यूज इन स्टील इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन यूज इन स्टील इंडस्ट्री। देन कोल टार, ब्लैक थिक सब्सटेंस, ब्लैक थिक लिक्विड यूज टू मेक डाइज, drugs and perfumes। Then coal gas, okay, this is also important, right? Fuels for lightening and cooking। Old days coal gas use होता था fuel for
लाइटनिंग एंड कुकिंग, बस इतना ही है, फ्यूल्स फॉर लाइटनिंग कुकिंग। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि ये ओल्ड डेज में होता था, अभी नहीं होता है, कभी कभी लोग अपने शौक के लिए करते हैं, लेकिन मोस्ट मेजरली अभी नहीं होता है, लेकिन फ्यूल्स फॉर लाइटनिंग एंड कुकिंग। ओके, that's the key. So now what is coke? Almost pure carbon used in steel industry. Almost pure carbon used in steel industry. Almost pure carbon used in steel industry. Then what is coal tar? Coal tar is a thick liquid used to make like a perfume drugs and makes dyes. Perfume drugs and dyes. Then what is coal gas? Coal gas used to lightening and cooking in old days. Okay. तो भाई अभी मैं आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन इट्स लाइक जो पेट्रोलियम का पार्ट है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई थोड़ा सा ना हार्ड है। ओके, बट देन अगेन यू आर ऑन माय चैनल, नो स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग, ईदर इट्स योर पेपर और एनीथिंग, जस्ट टेक अ फन एंड हैव अ फन एंड मेक फन। ओके, सो लेट्स बिगिन। पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फॉर्मेशन, पेट्रोल कैसे फॉर्म हुआ? Dead marine organism buried under sand clay. Heat and pressure से बना petroleum and natural gas is porous rocks. As I said, this is little hard, I think, but not take load because this is little IMP. So, understanding this definition would be not really easy by my side. So, here is an Hindi translated like all the meaning. मतलब dead marine organism buried under sand, clay, heat and pressure, petroleum and natural gas and porous rocks. इतना इसको हार्ड लैंग्वेज में करने से अच्छा है ये सिंपल इंग्लिश में भी बोल सकते थे, लेकिन इन लोगों को बोलना तो है नहीं, तो चलो हम हिंदी में समझते हैं, जो मैंने भी इसको इसी तरह से समझा था। देखो क्या हुआ था, लाखों साल पहले समुद्री जीवों के मरने के बाद उनके अवशेष समुद्र तल में जमा हो गए। अभी रेत और लाइक नदी की परतों, रेत और मिट्टी की परतों के नीचे दबकर ये अवशेष उच्च तापमान और दबाव में आकर धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। मतलब डोंट यू फील लाइक समथिंग हैपेंस एंड लाइक मीन्स समटाइम्स लाइक coal and petroleum definition are same, isn't it? But the only difference in that is the like petroleum formed due to marine animals, marine plants जो मर गए, उनके अवशेष जो बच गए, उनकी वजह से पेट्रोलियम था। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पेट्रोलियम में मरीन एनिमल्स को यूज़ किया गया था। वही हमने बोला कि कोल को फॉर्मेशन के लिए डेड वेजिटेशन का यूज़ किया गया है ना। ओके, सो दैट वाज आई मीन टू से। अभी पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ओके, अभी भाई इतने मुश्किल नाम रखते हैं ना। अभी पेट्रोल रिफाइनिंग मतलब क्या, मैं आपको बताती हूँ। पेट्रोल रिफाइनिंग मतलब कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में बदलने की प्रक्रिया को हम ही पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन रिफाइनरीज। इस प्रोसेस को मतलब किसी कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को पेट्रोल, केरोसिन, डीजल बनाने की जो प्रोसेस होती है हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। किसको, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? ओके, a process in which we change crude oil into different parts such as petrol, kerosene and diesels in different temperatures and different atmospheric pressures that are called fractional distillation। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी फिर से इतने हार्ड वर्ड है भाई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब कच्चे तेल से उत्पादन, कच्चे तेल से बनाए गए ये कुछ चीज़ें हैं जो कच्चे तेल से बनती है। अभी कच्चे तेल से क्या क्या बनता है? अभी कच्चा तेल मतलब होता है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं। फिर बनता है पेट्रोल ऑब्वियसली, फिर बनता है केरोसिन, फिर बनता है डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिट्यूमेन। अभी इसमें से सब पता करना इजी है। जैसे पेट्रोलियम गैस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इट्स लाइक फॉर कुकिंग, जो हमारे सिलेंडर में होता है वो गैस।
भी एलपीजी होता है। देन पेट्रोल तो ये बच्चा बच्चा बता देगा, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे उनको पूछो। पेट्रोल किसी भी गाड़ी को भगाने का फ्यूल होता है, पेट्रोल। देन केरोसिन जेट फ्यूल्स होता है, प्लेन वगैरह केरोसिन से किसी भी प्लेन को या फिर फ्लाइट या फिर हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए उनका फ्यूल होता है केरोसिन। डीजल भी पेट्रोल का ही भाई है, बस पेट्रोल थोड़ी सी हल्की गाड़ियों में यूज़ होता है, वही डीजल थोड़ी सी भारी गाड़ियों में यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ होता है इंडस्ट्रियल मशीनरीज में वगैरह। देन पैराफिन वैक्स भी बहुत इजी है पता करना, जो कैंडल का जो बेस होता है वाइट कलर का वो उससे ही बनता है, इजी। देन बिटुमिन, देखो अभी बिटुमिन के तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ये बिटुमिन हम रोड्स के लिए यूज़ करते हैं। देन ऑल्सो हम इसको रूफिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ लाइक ये वाटर प्रूफिंग के लिए भी वाटर प्रूफ जो चीज़ें होते हैं इससे बनता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेचुरल गैस। ओके, लाइक नेचुरल गैस फाउंड इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। इसका मीनिंग है जहाँ पे पेट्रोलियम गैस मिलता है वहीं पे प्राकृतिक गैस भी मिलती है, लाइक कंप्रेस नेचुरल गैस लाइक CNG। सो जैसे नेचुरल गैस का पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो वी आस्क्ड आवर GPT हम्बली टू मेक दिस लाइक इन हिंदी। ओके, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, यह एक तरह का ईथन मतलब फ्यूल है जो धरती के अंदर अक्सर पेट्रोलियम के ऊपर की परत में मिलता है। नेचुरल गैस, ये मतलब अभी मैं आपको अपने वर्ड्स में समझा रही हूँ, ओके, लाइक माय ओन वर्ड्स। ओके, सो यह एक तरह का फ्यूल है जो धरती के अंदर होता है। ये ऐसा फ्यूल है जो धरती के बहुत अंदर ऐसा रहता है, वी कैन से दैट, एंड अक्सर पेट्रोलियम के ऊपर की परत में मिलता है। जो पेट्रोलियम हमें कहाँ मिलता है, सबसे नीचे की लेयर में। अब ये नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस हमें कहाँ मिलता है, इसके ऊपर की लेयर में। ओके, यह गैस पाइपलाइन या सिलेंडर में भरकर लाई जाती है। ये गैस ऐसे ही उठा के नहीं लाई जाती है, इसको पाइपलाइन या फिर सिलेंडर में भरकर लाया जाता है, ठीक है। इसे जलाने पर धुआं बहुत कम निकलता है, राख नहीं बनती। और जब हम इसको व्हेन वी बर्न इट, सो लाइक स्मोक कम्स रियली इन स्मॉल अमाउंट एंड द ऐश डजंट हैव मीन्स ऐश निकलती ही नहीं है। यह सस्ती और साफ ऊर्जा का स्रोत है, ये बहुत सस्ती होती है। इट्स चीप एंड इट्स क्लियर, इट्स नॉट सो डर्टी, इट्स लाइक दैट। सो लेट्स रिकैप दिस ऑल इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, प्राकृतिक गैस ये एक ऐसी फ्यूल है जो धरती के नीचे रहता है, जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, उसके एक परत ऊपर हमें ये मिल जाता है। ये गैस पाइपलाइन या सिलेंडर में भरकर लाया जाता है। इसे जलाने पर धुआं यानी स्मोक बहुत कम आता है, और ऐश तो आती ही नहीं है, एंड यह सस्ती भी होती है और ऊर्जा का स्रोत है। ओके, देन CNG अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, मतलब यह दबाकर भरी हुई प्राकृतिक गैस है। कंप्रेस्ड मतलब ही क्या है, किसी भी चीज़ को दबाकर रखना। अगर आपने एक आधी बार आप किसी लाइक बेड पे बैठे हो और उस बेड को दबा के रखे हो, तो देन इट्स कंप्रेस्ड। ओके, ये कंप्रेस्ड है। ओके, इसे बहुत ज़्यादा दबाव में सिलेंडर में भरा जाता है। इसको बहुत दबा के सिलेंडर में ना भरा जाता है। कहाँ इस्तेमाल होती है ये, अब ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ये बस, कार, ऑटो जैसे वाहन में चलाने में काम आती है ना, फैक्ट्रियों में मशीन चलाने में। और इसके फ़ायदे क्या है, पेट्रोल और डीजल से कम प्रदूषण करती है। CNG मेक्स लेस पोल्यूशन देन पेट्रोल एंड डीजल। इट्स चीप एंड अवेलेबल इन स्टोर्स ईजीली, एंड और ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। नाउ व्हाट अबाउट LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब है द्रवित पेट्रोलियम गैस, तरल रूप में रखी गई गैस। यह सिलेंडर में भरकर घरों में पहुंचाई जाती है, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होती है, घर में खाना पकाने के लिए। उसके फ़ायदे क्या है, जलाने पर धुआं नहीं करती, तुरंत ज़्यादा गर्मी देती है और इस्तेमाल में आसान करती है। यहाँ पे इन्होंने बताया आसान फ़र्क याद रखने का तरीका। CPNG ज़्यादातर गाड़ियों में और फैक्ट्रियों में, LPG घर में खाना बनाने के लिए। सो अगेन वी आर हियर, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल फ्यूल्स, लिमिटेड इन अमाउंट,
यूज़ वाइजली मेथड्स, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्विच ऑफ इंजन, सर्च लाइट, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट, ये सब आप बहुत होशियार हो, यू कैन से डैट। देखो, अगर आप हर बार ऑफिस जाने के लिए खुद की गाड़ी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको हर बार पेट्रोल लगेगा। लेकिन वही अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप आओ या ना आओ वो तो चलने वाली है, उसका फ्यूल वेस्ट होने ही वाला है। तो अपना फ्यूल वेस्ट करने से अच्छा है उनके साथ जाओ, यानी कि उनका तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, लेकिन आपके पैसे कम जाएंगे और शायद कि आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत काम आएगा, वरना उनको रास्ते पे आ जाना पड़ेगा। स्विच ऑफ इंजन, अब भाई अगर रेड लाइट चालू है तो क्यों क्यों हमें मतलब अपनी गाड़ी को चालू रखना है? भाई बंद कर दो उतनी देर के, उतना ही अपना पेट्रोल कम जाएगा और उतना ही फ्यूल एंड लाइक कोल पेट्रोलियम कम होगा। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस, भाई आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत चल रही है, इट्स लाइक यू शुड यूज़ दैट। देन प्रोमोट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, भाई मैं आपको अपने मुंह से कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अवेयरनेस भेजो सबको, जैसे कि क्या करना चाहिए टू कंजर्व दिस, ये सबसे मेन पॉइंट। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेक्ट, स्विच ऑफ इंजन एट अ रेड लाइट करेक्ट। उसके बाद आप वॉकिंग या फिर साइकिलिंग भी यूज़ कर सकते हो, नॉट इफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, उनका भी कोल बचा देते हैं। अगर हम सब ने साइकिल या फिर वॉक यूज़ किया तो खाली गाड़ी तो जाएंगे ही नहीं किधर। दैट्स ऑल्सो की। चैप्टर खत्म होने को है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से वाइंड अप कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, लीड्स टू एसिड रेन एंड द फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल. And the chapter is ended here. I hope you understand it really very well. If I'm not bad, and tell me in comments how you feel my teaching skills and all. But before that, here is a mini test for you. ओके, एंड आंसर विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। ठीक है, मैं आपको ये समझा दूंगी पूरी अच्छी तरह से। यू जस्ट टाइप इट इन कॉमेंट सेक्शन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन? कोल 10 seconds, just check whether you are prepared for not. 1 2 3 4 5 6 7 8. So answer is carbonization. Okay, name any two petroleum product and their uses. Any guesses? So petroleum products बोलने के बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं, like kerosene and petrol. Petrol are used to fill into the cars, so the cars can run easily. And kerosene is used as a fuel of a jet. Use in jet fuels. Okay. Which fuel is better for vehicles, CNG or petrol? Why? So CNG is cheaper, and so you think that we can afford that to use in vehicles. But there is one more point, that petrol gives more better performance, and wide availability of petrol is wider in all the areas. So we think that uses of petrol is better. List the 4 types of coal from lowest to highest carbon content. And answer of the bitumen, anthracite, and all that we have learned. Now remaining one, I have not completed this. Okay, I have only tell 2 points and not all tell that. Now remaining this and this is yours. You just tell me the answer of this in comment section. And a special thanks to ChatGPT to help us to make this successful video. I love you all. I love you. And tell me if anything else on which topic you want your next video. And if you like this video, just like, share and subscribe. And Har Har Mahadev. I hope you understand everything and you're full prepared for your exam purpose. And just do this by your own and check whether you are like ready for your exam or not. If not, I will make again the same video on the same topic with different style of teaching, so that you can understand. If not, just like tell me everything, you can share with me, as I am your friend. I check the comment section daily basis. So please like, share, subscribe. Har Har Mahadev. Bye bye.